एक थॉट प्रोसेस चाहिए, एक टेक्निकल साउंड पर्सन चाहिए। यदि वो टेक्निकलिटी है कैंडिडेट में तो वही कैंडिडेट सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जॉब आफ्टर 10 ईयर डाउटफुल मुझे लगता है। माय रिसर्च एरिया इज AI/ML इन साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली। वही लोग आए जो टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सो आई वाज वर्किंग इन विप्रो फॉर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सर, आपने CSIT खुद चूज करी थी आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर सोसाइटी को देख के आपने चूज कर लिया? Hello and welcome to the 9th episode of Professors Interview Series, a series where I am interviewing professors of my college, NIT Jalandhar, to know more about engineering branches. And today we will be discussing about the most in-demand branch, Computer Science and Engineering, with Dr. Samaveer Sir, Assistant Professor, CSE Department, NIT Jalandhar, along with his PhD student, Aviral Sir. So let's directly jump into the interview. We have with us Samaveer Sir, faculty of CSE, also Aviral Sir, सर के अंडर PhD कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएंगे? दिस इज डॉक्टर समावीर सिंह। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT Jalandhar. Basically, my research area is wireless sensor network, IoT and network security. Right now I am guiding 3 full-time PhD students and 5 part-time students in these domain. Yes. Sir, what is CSE in layman terms? CSE generally we study hardware and software designing and the way human interact with the machines or technologies. In software designing, we can say we can use multiple programming language like C, C++, object-oriented programming language, Java, Python, for designing various applications. It also includes web development, website development, and right now there are a lot of mobile apps are there. So these are CSE students also develop these mobile apps. So this is a basic introduction of CSE, how we can develop, what we can develop in CSE. So majorly CSE student can develop some hardware and some software. Okay, sir, आपका with the experience of what is CSE in layman terms? As sir said that we generally do what is related to hardware and software, and including that you recently heard of new terms such as Web3 and blockchain, all that, cryptocurrencies and all that is part of computer science only. Okay. And sir, over the duration of 4 years, what are the subjects one studies in CSE? Basically, we can categorize subjects into 2 broad categories. One is core, department core, and second one department electives. So in department core, we have some programming languages like in first year we have computer programming, Python, and then we have operating system, computer network, then some algorithm related subject, operating system, databases. So these are the core subjects related to the computer science branch. Then we have electives, and electives depends on the technologies. Nowadays there are new technologies like blockchain, so we have some subject related to the blockchain, AI, machine learning, deep learning, and we can also categorize some specialization like somebody want to work in the IoT, so we have 3-4 subjects for IoT. Then if anybody want to specialization in machine learning for example, so we have a set of electives related to the machine learning. और सर, जैसे सबको होता है कि CSE में कोडिंग होती है, लेकिन व्हाट इज कोडिंग अगर आप एक बार बता पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज कोडिंग एक्चुअली। फॉर एग्जांपल वी वांट टू कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल वी वांट टू ऐड 2 numbers, so how you will do that? So basically आप क्या करोगे, you will pick a calculator, और if number is large तो आप एक कैलकुलेटर लोगे, दोनों को ऐड करोगे, then you will get the output. Similarly क्या करोगे, एक जनरल प्रोग्राम बनाओगे
क्योंकि कैलकुलेटर के पीछे भी एक प्रोग्राम ही है जो ऐड कर रहा है। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम डेवलप करेगा। मान लो 2 नंबर हैं उसके पास, दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए एक कोड लिखेगा, ठीक है। जो कोड वो लिख रहा है दैट इज़ कोडिंग, कि 2 नंबर वो यूज़र से इनपुट लेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट यूज़र को मिलेगा। तो वो जो इंटरेक्टिव स्क्रीन दिखाई दे रही है वहाँ पे क्या हुआ, 2 इनपुट्स गए और एक आउटपुट आया। बैकएंड में जो लॉजिक अप्लाई हुआ दैट इज़ कोडिंग। सर जैसे सोसाइटी में जनरल परसेप्शन बन गया है कि हर किसी को CSIT चाहिए, चाहे उन्हें CSIT में एक्चुअल में इंटरेस्ट है या नहीं है, पर लेकिन इसलिए कि क्योंकि CSIT में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, सबको पैसा दिखता है, पर इंटरेस्ट है या नहीं पता नहीं, पर इसलिए कोई कोर ब्रांच नहीं लेना चाहता। इस थॉट प्रोसेस पे आपका क्या टेक है? ये तो एकदम ट्रू है कि आज की डेट में हर कोई कंप्यूटर साइंस या IT में जाना चाह रहा है, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सीट्स अवेलेबल हैं। प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे सीट अवेलेबल कर दी हैं। तो अब सीट्स अवेलेबल हैं तो जो हमारी आउटकम आएगी इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर्स, वो एक हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगी। जब क्वालिटी डिक्रीज़ होगी तो आज की डेट में जैसे हमारे पास ऑटोमेटेड टूल हैं, ऑटोमेटेड टूल से जो एक जनरल नॉर्मल इंजीनियर वर्क करता था वो आज की डेट में वो टूल से हो रहा है। जनरेटिव AI टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखना है तो वो तो ऑलरेडी लिख जाएगा टूल की हेल्प से, बट उस कोड को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, उसके लिए एक मतलब एक थॉट प्रोसेस चाहिए, एक टेक्निकल साउंड पर्सन चाहिए। यदि वो टेक्निकलिटी है कैंडिडेट में तो वही कैंडिडेट सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जॉब आफ्टर 10 ईयर डाउटफुल मुझे लगता है, तो मेरा अपना मानना है। हाँ, मतलब कि CSIT वगैरह जिनके एक्चुअल में इंटरेस्ट है वही लोग आए जो टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। नई टेक्नोलॉजी आप लर्न नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इशू जनरेट होंगे फ्यूचर में। सर आपने CSIT खुद चूज़ करी थी आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर सोसाइटी को देख के आपने चूज़ कर लिया? एक्चुअली I have decided that in 2003, I'm 2007 pass out, and that was very new। जो CSIT थी कि बड़ा न्यू होती थी, तो पीपल प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, लेकिन कंप्यूटर साइंस और IT में बड़े लिमिटेड लोग एडमिशन लेते थे उस टाइम पे। तो बेसिकली थोड़ा स्कूलिंग में मेरा कुछ आइडिया था कंप्यूटर से रिलेटेड, हमारे 6 क्लासेस से स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया था, बस उसी इंटरेस्ट को लेके चूज़ कर ली थी। और सर तो कैसा रहा अब तक आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा वैसे देखा जाए तो ओवरऑल। बीटेक करने के बाद मैं एमटेक किया, मैंने NIT जालंधर से ही एमटेक किया है 2008 to 10 बैच में। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से PhD किया है। तो जो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की लर्निंग है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जैसे हमारे टाइम में पाइथन नहीं थी, पाइथन इंट्रोड्यूस हो गई, तो पाइथन को लर्न करने का एक अपना अलग एन्जॉयमेंट है, ठीक है। लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें जनरली लिखने पड़ते थे, लेकिन पाइथन में वो चीज़ अवेलेबल है। तो टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि पहले कोडिंग में ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे, अभी इतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं क्योंकि रेडीमेड फंक्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। सर जैसे आप PhD कर रहे हो CSIT में, आपने CS क्यों चूज़ करी थी? मैंने CS बहुत पहले से सोचा था कि मैं CS ही करूँ। बोथ माई पेरेंट्स आर प्रोफेसर्स, सो बचपन से ही आई वॉज इनटू कंप्यूटर। So even there was a time when my father said that you should not take CSIT, you should take something else. But I said no, I want to take CSIT. So बचपन से ही I wanted to be in computers. जैसे तो अभी आप जैसे रिसर्च कर रहे हो किसी न किसी चीज़ पे, तो आप अपने रिसर्च के बारे में बता सकते हो कुछ? मैं समीर सर के अंडर PhD स्कॉलर हूँ फुल टाइम, and I am working on cyber security basically. So my field is very niche and very, you can say, overlapping. I work on malware detection, जो आप सुनते हैं, viruses, ransomware, all that.
सो उनको डिटेक्ट करना विद हेल्प ऑफ AI मॉडल्स. Sir, what is your general observation about these students? You are talking about कि what kind of stuff is coming in मतलब जैसे in बच्चे our आ रहे हैं, institute. हाँ, आपने क्या जनरली ऑब्जर्व करा है बच्चों में? Okay. So actually if we are looking NIT की जो सीट्स होती हैं कंप्यूटर साइंस की वो सबसे पहले फिल होती हैं, then IT, then other branches, right? तो बेसिकली टॉप रैंकर्स ही यहाँ पे आते हैं जो JEE के टॉप रैंकर्स होते हैं, और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी मान लो हम उनके एप्टीट्यूड की बात करें या उनके एनालिटिकल थिंकिंग की बात करें या उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो ये जब सारे कंपोनेंट्स उसमें स्ट्रांगली एग्जिस्ट होते हैं CSE स्टूडेंट्स में, तो वो इजीली न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज़. और वो एक CSE स्टूडेंट में आज की डेट में होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती हैं. कंप्यूटर साइंस तो हर 2-3 ईयर में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. यदि वो इजीली उसको लर्न कर पा रहे हैं तो वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो ये बेसिक एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट में, और मोस्टली स्टूडेंट में जो NIT में आ रहे हैं उनमें ये चीज़ होती है. अब सर जैसे इस बार सुनने में रिसेशन है, रिसेशन का वन ऑफ द रीज़न बताया जा रहा है कि AI इंट्रोड्यूस हो गई है. तो इस पे आपका क्या है कि AI के आने से फ्यूचर कहाँ दिख रहा है CSIT का? अभी तो इतना इफ़ेक्ट नहीं है. अभी इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमारा जो प्लेसमेंट हुआ है NIT जालंधर में, प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो इंक्रीज़ हुआ है. NIT जालंधर का जो मैं सीन बता रहा हूँ वो 30% इंक्रीज़ हुआ है एज़ पर स्टैटिक्स. बट फ्यूचर में जैसे जनरेटिव AI टूल वगैरह आ रहे हैं, उससे जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं वो तो डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो बेसिक, अगेन वही बोल रहा हूँ मैं जो पहले बोला था कि बेसिक जो वर्क है वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स. बट उनको असेंबल करके एक प्रोडक्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना वो एक इंजीनियर का ही काम होगा, और उसके लिए हमें फास्ट लर्नर चाहिए जो उस पीस ऑफ कोड को अंडरस्टैंड करके असेंबल करके एक प्रोडक्ट रेडी कर दे. सो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर, हाई एनालिटिकल थिंकर्स की ज़रूरत है. तो वो स्टफ़ है अभी मार्केट में. बट प्लेसमेंट डाउन हो सकता है यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, स्टूडेंट अपग्रेड नहीं करेंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड हो जाएंगी उनके लिए. ऐसे सर व्हाट आर द करियर पाथ्स आफ्टर चूजिंग CSE? बेसिकली जैसे मैंने डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखा है, तो पीपल क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेसमेंट लेते हैं, 1 ईयर 2 ईयर अपना स्पेंड करते हैं, लर्निंग करते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, देन दे थिंक अबाउट द हायर स्टडीज़. या तो वो MBA की तरफ मूव करते हैं या फिर वो मास्टर्स डिग्री की साइड में मूव करते हैं. तो ये जनरल परसेप्शन इंजीनियर्स का होता है. यदि कोर टेक्नोलॉजी में रहना है तो दे विल कंटिन्यू विद द कंपनीज़. अदरवाइज़ मान लो उनका माइंड चेंज होता है, दे वांट टू MBA करना है तो MBA साइड में निकलते हैं, अदरवाइज़ मास्टर्स में, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग टीचिंग तो मास्टर्स करके PhD एंड पोस्टडॉक हो. तो 2-3 कैरियर पाथ्स बनते हैं यहाँ पे. यदि बिजनेस साइड में जाना है तो MBA करेंगे, यदि टेक्नोलॉजी में रहना है तो दे विल लुक अनदर अपॉर्चुनिटीज़, गुड अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, अदरवाइज़ वो फिर टीचिंग लाइन में एक हायर एजुकेशन साइड में निकल जाएंगे या रिसर्च विंग में निकल जाएंगे. Okay, and sir, what is the scope of CS? Right now scope तो मतलब there are lot of opportunities are there for the students. और अभी अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर तक तो कोई इशू नहीं है. देर आर लॉट ऑफ जॉब्स अप टू 10 ईयर. बट आफ्टर 10 ईयर इतना इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का जनरेट हो जाएगा कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस लेवल पे लेके आना मुश्किल हो जाएगा. इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए. रीज़न अगेन वही है कि चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं. जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है. तो उसमें कैपेबल पर्सन्स को ही फिर उनका एग्जिस्टेंस होगा. अदरवाइज़ जो कैपेबल नहीं है या थोड़ा नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर पा रहे हैं अपने आप को, तो उनके लिए इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे एज़ पर माई परसेप्शन. सर तो इसलिए किन टाइप के बच्चों को CSE चूज़ नहीं करनी चाहिए?
एक्चुअली यदि कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको लगता है कि मैं इतना, जैसे जनरली हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम है तो उसके लिए एक लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। यदि आपके माइंड में लग रहा है कि आप एक लॉजिक डेवलप नहीं कर पा रहे हो, या जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है कि उसको CS नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है किसी का अच्छा और कुछ ऑप्शंस हों उसके पास, मैथमेटिक्स अच्छा है तो दूसरी, मैथमेटिक्स तो कंप्यूटर साइंस में भी चाहिए, बट जहाँ उसका इंटरेस्ट लगता है कि मेरा कंप्यूटर साइंस को छोड़ के दूसरी ब्रांच में, तो वहाँ जाना चाहिए। Sir, what are research opportunities in CS? एक्चुअली जो रिसर्च इंटरेस्ट बनता है किसी भी स्टूडेंट का, वो मेजर प्रोजेक्ट जब थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, यदि BTech की टर्म्स में देखें तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बनता है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग में दो मेजर प्रोजेक्ट, एक माइनर प्रोजेक्ट होता है, एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। तो माइनर में एक स्टूडेंट क्या करता है, एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है, फिर उसकी फॉर्मुलेशन करता है, और मेजर में उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कर लेता है। तो वहाँ से एक उसका रिसर्च एरिया डेवलप हो जाता है। अब मेजरली हम बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो आज की डेट में जो AI ML के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसी में फिर जैसे AI ML डिफरेंट एप्लीकेशंस में लगा रहे हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, या फिर इमेज प्रोसेसिंग में लगा रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग का काम आज की डेट में लोग कर रहे हैं, और डेटा हेडिंग में लगा रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ AI ML जहाँ पे पीपल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ Aviral is also working in AI ML applications, so he will add के how he is working. So, like as I told earlier, my research area is AI ML in cybersecurity specifically. So basically, AI and ML are set of, you can say, models and set of principles which you can apply to every field. Every field, as in from ranging from cybersecurity, stock market predictions to medical imaging, to you can apply it to n number of fields. So in this, actually, with the development of generative tools like ChatGPT and Copilot and all, you find that research is becoming more and more interesting in AI ML in various fields from. ओके, तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर ऑफ CS आफ्टर AI ML? Future of CS after AI and ML will still be there. A lot will be there. Like research का तो अभी भी बहुत ज़्यादा scope है in AI and ML. Like if you'll see, you'll come across के जो various generative tools हैं, they still give out various answers which are not correct. वो इसलिए है because there is a lot of improvement required in the research field, and उसके थ्रू हमारा रिसर्च प्रोसेस और हमें मतलब डेवलप करना पड़ेगा, और न्यू एल्गोरिदम ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जो स्पेसिफिक सेट ऑफ फील्ड्स पे लग सकें। जैसे जो जनरेटिव टूल्स हैं वो तो हमारे जनरल कॉन्वर्सेशनल टूल्स हैं, इसलिए ह्यूमंस बहुत फैसिनेट होते हैं इससे, बिकॉज जनरल कन्वर्सेशन, हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और वो हमें आंसर देता है। सो दिस फैसिनेट्स अस, बिकॉज अभी तक हम ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन ही कर पाते थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड्स इन विच इट कैन हेल्प। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, गूगल ने एक टूल लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन्स की जो फॉर्मुलेशन है और कैसे प्रोटीन्स को आप स्टडी कर सकते हैं, न्यू प्रोटीन्स स्टडी कर सकते हैं, न्यू प्रोटीन्स कैसे डेवलप होते हैं, उनके वेरियस आइसोमर्स होते हैं। जैसे आइसोमर्स मीन्स के डिफरेंट, एक प्रोटीन होता है उसका वेरियस उसके जैसे सिमिलर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। सो यूजिंग AI एंड ML, गूगल हैज़ मेड अ टूल जिसके थ्रू वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो गया। पहले 1-2 साल लगते थे एक प्रोटीन फाइंड करने में, जो विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से मेडिसिन, एक प्रोटीन चाहिए आपको, या यू कैन से जैसे कोविड-19 में एक प्रोटीन स्पाइक के थ्रू ही हम वैक्सीन बना पाए थे। सो दोज फाइंडिंग दोज इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, वो काफ़ी इजी हो गया है। एंड आगे जाके हमें और इस पे डेवलपमेंट की अभी बहुत ज़रूरत है, तो सो दैट एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए अलग से एक AI मॉडल बनाना पड़ता है।
This means that a lot of research is required for each and every type of solutions. जैसे आप देखेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लेट्स से जैसे टेस्ला एंड ऑल, दे से दैट हमारा सेल्फ ड्राइविंग जो एल्गोरिदम है वो बहुत अच्छा हो गया है. सो इफ़ यूल सी इट हैज़ टेकन देम मोर देन 15 years टू करेक्ट दैट एल्गोरिदम. 2008 से अगर उन्होंने शुरू किया था तो अब जाके परफेक्ट हो पाया है. सो अ लॉट ऑफ रिसर्च कैन बी डन इन वेरियस फील्ड्स, ऑटोमोबाइल से लेके साइबर सिक्योरिटी, इन बायो हैकिंग, टू ऑल दिस टूल्स. मतलब रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है. और अभी जैसे व्यक्ति में मैं ये समझा कि अगर किसी बच्चे को कोई दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो, जैसे आप बायोलॉजी का बता रहे थे, बायोटेक का, अगर कोई बायोटेक का हो, वो कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर रहा हो, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है. तो भी बहुत अच्छा कर सकता है, बिकॉज इवन मतलब ये अपॉर्चुनिटी CS वालों के पास है कि दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस अदर फील्ड्स. अब जैसे एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही CS वालों के लिए फॉर रोबोटिक्स. अब वो रोबोटिक्स से ऑटोमोबाइल AI पे आ गया है, लाइक हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ऑर्स की बात कर रहे हैं. सो ऑल दैट इज रिलेटेड टू AI. सो वो भी तो CS इंजीनियर्स ही बना पा रहे हैं, जो मॉडल बना रहे हैं, AI मॉडल बना रहे हैं एक अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू. वो जब एक कैमरे के थ्रू वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि यहाँ से मुझे कर्व आ रहा है तो मुझे स्टीयरिंग घुमाना होगा. उसका जो मॉडल डेवलपमेंट है वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कर रहा है. एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल की है, बट वो डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कर पा रहा है क्योंकि पीछे AI मॉडल ही चल रहा है. उसमें एक और बेनिफिट है, जैसे इंस्टीट्यूट्स ने माइनर डिग्री भी स्टार्ट कर दी है अदर ब्रांचेस के लिए. जैसे आप मैकेनिकल के हो और कंप्यूटर साइंस के आपको सब्जेक्ट्स रीड करने हैं, तो यू कैन टेक अ माइनर फ्रॉम CSE. तो उसमें 6 to 8 कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे विद सम स्पेशलाइजेशन. तो वहाँ से आपकी बेसिक नॉलेज इंक्रीज़ हो जाती है, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क. ये मोस्टली इंस्टीट्यूट में आज की डेट में मेजर माइनर कॉन्सेप्ट आ गया है. मेजर जहाँ आप एडमिशन लेते हो, माइनर जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो वो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है. एक सेमेस्टर में एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना होता है. तो धीरे धीरे वो एक जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज है आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच की इतनी हो जाती है, देन यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन दैट. फिर तो माइनर डिग्री का बेनिफिट होता क्या है एट द एंड? एट द एंड फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट्स है और बाई चांस उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया आने के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने के बाद उसका नहीं इंटरेस्ट आ रहा है मैकेनिकल में, तो माइनर डिग्री पिक करेगा. कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री पिक करेगा और अपने आप को वहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलप कर लेगा. ठीक है, देन उस पर्टिकुलर एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख लेगा. क्योंकि आज की डेट में तो डिग्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता कि नॉलेज होनी चाहिए. इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन और डेवलप समथिंग, यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो और कुछ डेवलप कर सकते हो, तो कंपनी तो रेडी है आपको लेने के लिए. सर जैसे अभी रिसर्च की बात हो रही थी, ऐसे ही CS में रिसर्च के थ्रू ही स्टार्टअप्स बनेंगे. तो अब जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया की क्या ज़्यादा चांसेस है CS में, क्या स्कोप है इसका? एक्चुअली जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं. ये गवर्नमेंट का एक मैंडेट है कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए. तो जैसे ही किसी के माइंड में कोई आइडिया आता है तो दे हैव, जो इंक्यूबेशन सेक्टर है उनके पास एक पूरा प्रोसीजर है. ठीक है, तो आप आइडिया लेके आओगे, आपका आइडिया डिस्कस होगा, आप मतलब कैंडिडेट विल प्रेजेंट द आइडिया को देखेंगे कि व्हाट इज़ द नोबिलिटी, क्या फिजिबिलिटी है, जो प्रोडक्ट वो लेके आ रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या है, उस टाइप की ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्ट क्या है, हायर कॉस्ट में जा रहा है, लोअर कॉस्ट में जा रहा है. तो बेसिक एनालिसिस होता है. बेसिक एनालिसिस के बाद में फिर नेक्स्ट मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. तो इनिशियली जैसे NIT जालंधर भी कुछ फंडिंग देता है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 20 लाख या कुछ बेसिक अमाउंट देता है, जिसे सीड फंडिंग बोलते हैं एक स्टार्टअप के लिए. उसमें कुछ टर्म कंडीशन है. तो ये फैसिलिटी आज की डेट में टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मोस्टली में अवेलेबल है. आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो जो आपको सीड ग्रांट चाहिए स्टार्टअप के लिए वो अवेलेबल है. तो पीपल उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं. स्टूडेंट्स के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आपका इंटरेस्ट जाता है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए. सर जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कभी आया कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आया है, और मे बी आई विल स्टार्ट समथिंग समडे.
तो रिलेटेड टू माय ओन फील्ड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, स्कोप भी है. सो मे बी समडे आफ्टर आई मेक अप MVP, मिनिमम वायरेबल प्रोडक्ट, उसके बाद शायद स्टार्ट करें. अब सर जैसे CS में रेगुलर इंटरवल्स पे अपग्रेडेशन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आज रिलेवेंट है शायद कल रिलेवेंट नहीं होगी, तो एक नहीं बच्चा एक्चुअली ये सीन नहीं है कि रिलेवेंट नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं. हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, पर लेकिन शायद जैसे आज जो वो पढ़ रहे हैं वो कल आउटडेटेड हो सकता है. हाँ मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी. तो वो एक बच्चा अपने आप को कैसे मतलब अपनी कोई डोमेन चूज करे कि वो इस डोमेन में रहना चाहता है. नहीं, वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर ही है. फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटरेस्ट है, कोई जैसे नेटवर्किंग में जाना चाहता है, जैसे सिस्को वगैरह कंपनी जिस नेटवर्किंग एरियाज़ में काम करती हैं, तो फिर वो उसको एक एरिया पिक करना पड़ता है, नेटवर्किंग डोमेन हो गया. किसी को AI/ML एप्लीकेशंस पे काम करना है तो उसको वो डोमेन पिक करना है. किसी को सिक्योरिटी में जाना है तो सिक्योरिटी में भी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, तो वो उसका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ अपने आप को डेवलप करेगा, और जो डिफरेंट डोमेन है वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ तो आएंगी. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहेंगी तो उनके साथ अपने आप को अपग्रेड करेगा. ये नहीं है कि वो नेटवर्किंग में काम कर रहा है और AI/ML वो यूज़ नहीं कर रहा है तो उसको वहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है. उसको अपने ही डोमेन में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो वो सक्सेसफुल पर्सन होगा. ऐसे सर आप लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं. सभी आपने बताया नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी. वो तो अनलिमिटेड डोमेन है आज की डेट में, इंटरडिसिप्लिनरी चलता है, तो ऐसे नहीं कह सकते स्पेसिफिक यही एक डोमेन होगा. ब्रॉडली बात करें तो जैसे एक सिक्योरिटी अपने आप में एक डोमेन होता है, एक हमारा ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एक सिक्योरिटी में आपका ब्लॉकचेन भी आ जाएगा. ऐसे ही एक क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज एक साइड में आ जाती है. एक थियोटिकल कंप्यूटर साइंस होता है जहाँ थियोटिकल कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स की हम बात करते हैं. एक अपना इमेज प्रोसेसिंग होता है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस को प्रोसेस करते हैं, जैसे मेडिकल इमेजेस की हम बात करें तो एक वो अपना एक डोमेन हो जाएगा. एक प्योर नेटवर्किंग भी अपने आप में एक डोमेन है, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क हो गया, वायर्ड नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग हो गई. सो एक ये डोमेन हो गया. और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अपने आप में एक अपने डोमेन है रिसर्च के लिए. तो देर आर डिफरेंट डोमेन्स फॉर द रिसर्च. अब कहाँ पे इंटरेस्ट है कैंडिडेट उसी पर्टिकुलर डोमेन में वो करता है. सर हाउ मच इम्पोर्टेंट इज फर्दर स्टडी इन CS? ये टोटली डिपेंड करता है कैंडिडेट के इंटरेस्ट पे. सो कैंडिडेट का इंटरेस्ट है तो वो हायर स्टडीज़ में जाता है. अदरवाइज़ इफ़ समवन इज़ लुकिंग जॉब्स इन कॉर्पोरेट तो वो अवेलेबल हैं आज की डेट में. तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. लेकिन कुछ कैंडिडेट का इंटरेस्ट होता है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन हायर स्टडीज़, तो वो फिर हायर स्टडीज़ में जाते हैं. सर जैसे आप हायर स्टडी कर ही रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि he has joined Wipro after BTech, I think, na? I have 2 years of experience after BTech. So I was working in Wipro for a project called Paytm Payments Bank. बैंक का तब implementation चल रहा था. So I was part of the team who was implementing this. So after that I thought के I should get more expertise in. I was already in cyber security domain. So I wanted more specialization in cyber security. So for that I joined here as an on the MTech program. MTech program यहाँ join किया मैंने. And in MTech program I worked on detection of Android malware as a research topic I took. जो सेकेंड ईयर में थीसिस का एक टॉपिक होता है डिजर्टेशन का. सो उसमें मैंने एंड्रॉयड पे काम किया, एंड्रॉयड मालवेयर डिटेक्शन पे काम किया. फ्रॉम देयर ऑन आई थॉट आई शुड वर्क मोर ऑन दिस. सो फिर मैंने PhD में भी एनरोलमेंट ले लिया. तो सर जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी चूज़ करा, आपको क्या इंटरेस्ट आया था, मतलब कैसे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आया? साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट ऐसे आया कि देयर वाज वन टाइम, इफ आई रिमेंबर, व्हेन आई वाज इन 10th 11th स्टैंडर्ड,
सो मेरा एक हॉटमेल का अकाउंट होता था, वो हैक हो गया एंड आई डिडंट गॉट टू नो कि कैसे हो गया, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिकवर दैट अमाउंट सब चाइनीज़ में लिखा आने लगा. सो आई थॉट ये कैसे हो गया. सो देन आई मीन सर्च गूगल एंड ऑल, तो पता लगा कि देयर इज समथिंग नोन एज हैकिंग. फिर हैकिंग से पता लगा कैसे कैसे हैकिंग की होती है. फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि देयर इज समथिंग नोन एज साइबर सिक्योरिटी. सो फ्रॉम क्लास 12th ऑनवर्ड्स आई वॉज समहाउ एसोसिएटेड विद साइबर सिक्योरिटी इन वन वे और अनदर. सो मैं कॉलेज बीटेक में बहुत वर्कशॉप्स वगैरह भी लगाता था. सो फ्रॉम देयर ऑन आई गॉट टू नो कि कैसे क्या होता है, क्या डिफरेंट फील्ड्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, मालवेयर्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, रैनसमवेयर्स क्या होते हैं. सो फ्रॉम देयर ऑन फिर मैं रीड करता गया सेल्फ लर्निंग के थ्रू. आई गॉट टू नो कि साइबर सिक्योरिटी माई गॉड. सर अब कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेसमेंट्स इन CS. और जैसे क्योंकि परसेप्शन बना हुआ कि CS में तो करोड़ों के पैकेज लगते हैं, तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस करोड़ों का पैकेज? करोड़ों का पैकेज तो जनरली बड़े लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए है. जैसे टॉप कंपनीज़ हैं, तो टॉप कंपनीज़ हायरिंग जो है बल्क में कभी नहीं करते हैं. उनके 7-8 राउंड्स होते हैं जो टॉप कंपनीज़ हैं, और एंड में वही 2-3-4 स्टूडेंट्स मिलते हैं एक कैंपस से, और जिसकी स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली वो ब्रांच का जनरली नहीं देखती हैं, इंटर ब्रांच अलाउ करती हैं, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ करती हैं. पर जो लास्ट में स्टफ उनके पास रह जाता है वो 3-4 कैंडिडेट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कॉलेज, एक कॉलेज से. तो वो क्या है, जो उनके डिफरेंट राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें चेक करती हैं. वो टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग भी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो तरीके हैं, स्टूडेंट कैसे सॉल्व कर रहा है, या फिर उनका एप्टीट्यूड कैसा है. तो दे आर चेकिंग ऑल एस्पेक्ट्स. तो जब वो ऑल एस्पेक्ट्स चेक करती है तो वहाँ पे फिर बड़ा लिमिटेड क्राउड रहता है हमारा, बड़े नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं, वो सक्सेस रेट बड़ा कम है. तो जो उनके पैकेजेस हैं वो भी हायर हैं, क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास सब कुछ है, ऑल इन वन. हाँ. तो और जो हम बात करें एक 5 to 10 लाख पैकेज की, तो जनरली कंपनी क्या देखती है, CGPA से शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं, देन दे आर लुकिंग द कोडिंग कि कोडिंग का लेवल क्या है. तो और दे कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन दैट लेवल. सो सर ये तो कि 1-2 करोड़ वाला जो पैकेज होता है ये बहुत रेयरली किसी को मिलता है, तो जर्नल पैकेज क्या होता है? आज की डेट में कंप्यूटर में 10 to 15 लाख एवरेज, जो मतलब एवरेज पैकेज जाता है. एक इंस्टीट्यूट टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है, वो इजीली वहाँ के स्टूडेंट 10 to 15 लाख एवरेज पैकेज में आज की डेट में उन्हें जॉब मिल रही है. ओके. एंड सर अब जैसे एक JEE बच्चा दे रहा है, उसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई है JEE में, पर लेकिन उसको एक्चुअल में इंटरेस्ट है CSIT में. अब उसे किसी भी टॉप कॉलेज में तो सीट नहीं मिल सकती CS में, तो वो क्या करे? उसके पास फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ही भी ऑप्शन रहते हैं. तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाए या फिर CSIT की जगह कोई दूसरी ब्रांच ले, IITs NITs में? नहीं, डिपेंड्स करता है कि उसको दूसरी कोई ब्रांच मिल रही है. हाँ, अब मगर मिल रही है, बस CSIT नहीं मिल पा रही. ऐसा होता नहीं कॉलेज वर्सेस नहीं, कोई कोर ब्रांच मिल रही है तो उसको वहाँ पे लॉस नहीं है. कोई भी एक कोर ब्रांच मिलती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तो लॉस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैंपस में उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है. और प्लस मैंने आपको बताया कि वहाँ पे माइनर डिग्री कॉन्सेप्ट भी है, ओपन इलेक्टिव्स भी हैं. आज की डेट में तो कंप्यूटर साइंस बहुत सारे ओपन इलेक्टिव ओपन करता है दूसरी ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए. तो वहाँ से वो अपने आप को अपनी लर्निंग, बेसिक लर्निंग जो रिक्वायर्ड होती है वो कर सकता है. कोर ब्रांच के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की नॉलेज उसको हो जाएगी. तो वो एक मतलब कंप्यूटर साइंस वालों के साथ compete कर सकता है. वो इन्वायरमेंट आज की डेट में अवेलेबल है. और सर अब जैसे CSIT लोग चूज़ तो कर लेते हैं, पर बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, और उनको बाद में वो मतलब ये होता है कि वो बस चलने जा रहे हैं, उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब लोग खुश नहीं है, ऐसा मैंने देखा है CSIT में. इस पे आपका क्या टेक? एक्चुअली उनको एक डोमेन तो पिक करना पड़ेगा. देखो उनके पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है. यदि मान लो वो 3rd ईयर या फाइनल ईयर में भी ये कहता है मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है.
वहीं फिर उसको थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करके एक पर्टिकुलर डोमेन ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ उसको इंटरेस्ट आए। फिर उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो उसका है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज की डेट में तो कंप्यूटर साइंस में हर सेक्टर में जॉब है, तो जिस सेक्टर का उसका इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में उसको मिल जाएगी जॉब। लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ सकता वो कि मैं कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है। या फिर वही है कि जब बिज़नेस माइंड उसका है तो बीटेक करके वो फिर MBA करे। हाँ। सर जैसे आपका तो इंटरेस्ट ही है, पर आपके साथ कलीग्स रहे होंगे बहुत सारे जिनका शायद इंटरेस्ट नहीं होगा CSIT में, तो आप कुछ बता सकते हैं वहाँ से इंसाइट? जनरली जैसे सर ने बोला, दे आर आइदर ट्राई टू स्विच डोमेन्स का मतलब वो मैनेजमेंट रोल्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, सो दे ट्राई फॉर MBA मोस्टली। एंड उसके अलावा इफ़ दे हैव सम अदर इंटरेस्ट, लेट्स से समथिंग इन आर्ट्स एंड ऑल, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बट इफ़ दे वांट टू बी इन IT and still are not good or do not feel better in programming and all, they can look for management roles in IT as well. तो प्रोडक्ट मैनेजर्स से ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट लीडर्स, group managers and domain managers, there are a lot of different managerial roles in IT as well. अगर मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बात करूं, सो अ वेरी फेमस रोल इज CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है कंपनी का। तो you might not be coding, you might not be involved in making solutions or finding out malware or finding out bugs, but आप उनको मैनेज, कोई तो कर रहा है तो उसको मैनेज भी करना होगा। सो IT में भी बहुत डिफरेंट रोल्स हैं। अ वेरी फेमस रोल इज़ प्रोडक्ट मैनेजर। आज के डेट में प्रोडक्ट मैनेजर्स की सैलरीज बहुत बढ़िया हैं, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट सही से डेवलप हो। जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस तरीके से और भी IT में और भी मैनेजमेंट के भी रूल्स होते हैं। नॉट ओनली कोडिंग यू हैव टू डू, बट वो है कि उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपका मैनेजमेंट में। उसमें थोड़ा या तो डिग्री होनी चाहिए या थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर दैट यू विल गेट गुड। उसमें पैकेज वाइज भी बढ़िया है, आपको जॉब भी कोडिंग नहीं करनी है, बट यू विल बी स्टिल बी इन IT। Okay. And sir, what advice would you advise or suggestion would you like to give to the students जो भी 12th के बाद एकदम कंफ्यूज है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें आगे? एक्चुअली उसको, कोई भी स्टूडेंट है, इनिशियली कुछ भी नहीं आइडिया है तो थोड़ा सा तो इंटरेस्ट उसको निकालना पड़ेगा। बेसिकली थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज गैदर करके फिर उसको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, मैकेनिकल में है, सिविल में है, या फिर केमिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, CS में है, या IT में। तो एक इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। उसके पास होता है, कुछ टाइम होता है, जैसे आफ्टर 12 2 months 3 months का टाइम होता है, तो वो 2 months 3 months में उसको अपना एक्सप्लोर करके डिफरेंट, आज की डेट में तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से कुछ नियर बाई जो लोग होते हैं वो सिस्टम में हैं, कुछ IT इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कुछ उनसे डिस्कस करके। तो इंटरेस्ट तो कैंडिडेट को ही निकालना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ना ही उसके इंटरेस्ट पेरेंट्स बता सकते हैं, ना उसके फ्रेंड्स बता सकते हैं। तो वो उसका अपना डिसीज़न होता है, और बड़ा क्रूशियल डिसीज़न है वो, क्योंकि सारा उसका कैरियर उसी डिसीजन पे टिका होता है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भी ये तो मालूम नहीं है कि इंटरेस्ट किस तरफ है, पर उनको हर तरफ से बोला जा रहा है कि CSE ले लो, CSIT ले लो, CSIT ले लो। उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। यदि उसे लगता है कि मुझे घर वालों की बात माननी है, तो फिर उसको अपना फोकस चेंज करके वही फोकस नहीं रखना है जो बोला गया है। फिर उसको बहुत ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाना है, उसका टारगेट फिक्स कर दिया तो उसी टारगेट पे फोकस करना है, और फिर वहीं देखना है कि इस टारगेट में मैं कहाँ फिट हूँ और किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं सर से डिसएग्री करूँगा इस पर। जो उसको फील आता है कि मुझे जो करना चाहिए, he should always follow his mind, always follow his conscious। जो भी उसका अंदर से फील आ रहा है वही फॉलो करना चाहिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था जो हमने अभी डिस्कस किया, ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने भी यही बोला। ये क्वेश्चन इज़ डिफरेंट कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको CSE ले लो, आप ब्लैंक हो, कैंडिडेट इज़ ब्लैंक। उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो किधर जाए।
और हर कोई बोल रहा है कि CS ले लो, CS ले लो। सो जैसे सर ने कहा कि कुछ ना कुछ या तो इंटरेस्ट ढूंढना होता है, या मैं ये नहीं मानता कि किसी का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एवरी कैंडिडेट हैज़ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। या तो बचपन में कभी इलेक्ट्रिकल वायर्स को देख के फैसिनेट हुआ होगा कि कैसे आती हैं, या कभी रोबोट्स को देख के फैसिनेट हुआ होगा, कार्स को देख के बहुत बच्चे फैसिनेट होते हैं। तो वन और द अदर एक होता है। जो डाउट कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी स्टेज पे भी आ सकता है। सो इफ़ यू आर वेल थॉट ऑफ इफ़ यू हैव अ वेल थॉट ऑफ प्लान कि मैंने +2 में डिसाइड कर लिया कि मैंने CSIT ही लेना था, बट जब करने लगता है तो सोचता है यार इसमें मन नहीं लग रहा है, तो वो डाउट तो कभी भी आ सकता है। बट एक आदमी के हमेशा मल्टीपल इंटरेस्ट रहते हैं, ये मैं मानता हूँ। somebody must have interest in cars, somebody must have interest in machines or something else, कुछ भी हो सकता है। n number of reasons होते हैं, n number of interest होते हैं आदमी के। सो वो एक पेपर पे राइट डाउन करने के बाद सोचना चाहिए कि अगर मैं इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, तो मैं इनमें से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उसके हिसाब से ऐसे चलना चाहिए। आई थिंक सो ये बेटर प्लान है एज़ कम्पेयर टू कि ये सोचना कि अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या लेना चाहिए। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि आप 4 साल उसमें बिताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बट एक पेपर पे राइट डाउन करके मेरे सारे इंटरेस्ट क्या हैं, उसमें उसे फिर चूज़ एंड कैंसिल करना चाहिए कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सर। आई होप इससे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सर। आपका भी लास्ट में आप कुछ बोलना चाहें तो? लास्ट में तो यही है कि यदि आप कोई भी XYZ ब्रांच चूज़ कर रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो। जैसे अविरल ने बोला कि आप एक लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने के बाद में फिर क्रॉस आउट करते रहो कि नहीं यहाँ नहीं है, तो लास्ट में जो आपका लास्ट बचेगा वही आपका फाइनल डिसीज़न होगा। सो वहीं फिर आपको अपना 100% लगाना है। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।